रिप्रेजेंट करना तो रह ही गया। स्क्रीन विजिबल हो गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वॉइस ऑडिबल है? यस सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग बेसिकली जो आप पढ़ चुके हैं पहले, उसी का वही थोड़ी सी चीज़ें हैं, उसी को थोड़ा सा रिवाइज किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा नदी के बाद। और उसके बाद आगे हम इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में होगा, लेकिन फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट 2 लेक्चर्स तो वही चीज़ें हैं जो आपने अप्लाइड थर्मल पढ़ी हैं, तो आपके लिए आसान होगा। बेसिक स्लाइड्स भी शायद वही हो, ज़्यादा डिफरेंस भी ना हो, आपके पास ऑलरेडी होगा। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन is basically the process of cooling of bodies of fluid to a temperature lower than those available in the surrounding. Basically, there is a difference between refrigeration and cooling. The cooling is a natural process, spontaneous process, or artificial process, just to get it cool, to get anybody cool to the temperature, which is generally uh, according to the atmospheric temperature. But or you can say the environmental temperature. And refrigeration is just doing the temperature below the atmospheric temperature, below the environment temperature. So cooling is affected by the surroundings basically, right? And refrigeration is a process which is done by using some thermodynamic process. Some thermodynamic process are used to make it possible for a substance or for a body or for a space to be cooled. To be cooled, that is less than the temperature which is less than its uh, surrounding temperature, right? So basically, extraction process will be there in both in the cooling and in the refrigeration. It is also absorbing the heat from the surrounding. It's also in this also the heat is absorbed from the surrounding. But here surrounding is different. Here surrounding is different. This surrounding is simple, a simple surrounding. That is the environment or the space in which a body is placed. But in the refrigeration, a space, refrigerant, specialized process are used in which refrigerant are circulated through a cycle. In the refrigeration, this is a cyclic process generally. Sir. Refrigerant are passed through the cyclic process. So all the practical refrigeration process involve reducing the temperature from its initial value to the temperature which is lower than the surrounding, and one thing more that it is to maintain that temperature. तो दो चीजें इसमें दोनों में डिफरेंस है। एक तो ये है कि कूलिंग में, अच्छा कोई और आया है, और कम, एक्सक्यूज मी सर। जी सर स्क्रीन थोड़ी धुंधली सी आ रही है सर, ब्लड सी आ रही है स्क्रीन। ब्लर आ रही है जी सर। थोड़ा बड़ा करके देखें क्या? अभी देखिए। यस सर, अब सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने स्क्रीन को लार्ज किया है। अब ठीक है या और बड़ा करें? नहीं सर, सही है, ठीक है सर। ठीक है ये। So basically there are two basic difference. Refrigeration is a process, cyclic process basically, and which is doing the temperature lower than the surrounding. One thing, एक difference cooling में और refrigeration में. और cooling, in the cooling just the temperature of a body is getting down depending on its surrounding temperature. Surrounding से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता क्योंकि surrounding air or surrounding environment, whatever it is there, either it is placed in some hot water or in hot air or in cool
air, cooled environment, in which environment it is placed, the naturally the body will be getting cooled. But it cannot be cooled below the atmospheric temperature, below the surrounding temperature. But refrigeration, in the refrigeration, the body is getting cooled below the surrounding temperature, right? Second is that in the refrigeration, we have to maintain the system at that required low temperature. We have to maintain. So there must be continuous extraction of the heat. जबकि कूलिंग में ऐसा नहीं होगा. कूलिंग में एक बार आप कूल हो गया तो सराउंडिंग के बाद कुछ नहीं होगा. सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है अगर ज्यादा ही होगा तो सराउंडिंग टेम्परेचर अचीव कर लेगी बॉडी. फॉर एग्जांपल योर हॉट कप ऑफ कॉफी, whenever it is temperature of the atmosphere achieved, then it will never get absorb the heat. It will never get the temperature cooled again. No. It is now no more temperature reduction will be there. And after that, maybe if any environment is a hot environment there, so maybe the temperature may be decrease or increase. But here we have to maintain the temperature. वो temperature में maintain भी करना है. Low temperature ये नहीं एक बार achieve कर ले, बल्कि continuous extraction heat का होगा. इसमें continuous एक बार steady state आ गई तो उसके बाद कोई heat extraction नहीं होगा. इसमें continuous heat extraction होगा. So there in all practical refrigeration system, we have to first reduce the temperature and then extract heat continuously. Continuously heat extraction will be there from the system at such a rate the temperature of the system should remain constantly low. तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं इन दोनों में. बेसिक डिफरेंस एक तो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन होगा हीट का, दूसरा ये है कि टेम्परेचर विल बी लेस देन द सराउंडिंग टेम्परेचर. ठीक है. एप्लीकेशन आपको पहले ही बता चुके हैं. रेफ्रिजरेशन के लिए फूड प्रोसेसिंग है. रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. बिकॉज इन द फूड प्रोसेसिंग there are the different chemical reactions or biochemical reactions are there which are getting reduced at the टाइम पे आया करें तो फिर दिक्कत ना हो. बीच बीच में ब्रेक करना पड़ता है. आप लोग थोड़ा सा टाइम से आ जाया करें. अब 11:32 पर आप एंटर कर रहे हैं तो 11:25 तक सब लोग आ जाया करें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी. 5 मिनट का हम गैप दे देंगे आपको एंटर होने के लिए. 11:20 पर जैसे क्लास शुरू हो रही है तो 11:25 तक आप लोग आ जाएं. 11:25 तक मैं आपको देख लूंगा कि आए हैं नहीं आए हैं. उसके बाद क्लास शुरू हो जाती है तो फिर बीच में पता नहीं चलता है. मुझे लगा कुछ लोग ऑटोमेटिक एग्जिट भी हुए हैं. कुछ प्रॉब्लम हुई है नेट पे. जैसे अमन श्रीवास्तव मुझे लगा पहले थे फिर बाद में दोबारा एंटर हुआ है. तो ये भी कुछ प्रॉब्लम है कि बीच में डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है नेटवर्क में. चलिए खैर. तो बहरहाल कोशिश करें कि सब लोग 11:25 तक एंटर हो जाएं. ठीक है. 11:25 पर 5 मिनट हम वेट करेंगे. 11:20 to 11:25. उसके बाद हम क्लास शुरू कर देंगे. तो फिर हम देख नहीं पाते हैं कि कौन अभी. जैम फाइल में क्या है ये स्वर्णिमा कह रही है कि जैम फाइल शेयर की है. Sorry, sir, by mistake. Okay. So application are food processing because at the low temperatures the biochemical reactions and the reactions which basically destroying the food, those chemical reactions, those biochemical reactions are reduced with the whenever the temperature is maintained, the low temperature is maintained. So that's why food processing and definitely low temperature are used in food processing. So in the chemical industries, in process industries, we need low temperature in many processes, and there are many special applications like cold treatment of metals, medical construction, ice skating, where the low temperatures are required. And these three are the main application of the refrigeration. And comfort air conditioning will be definitely part of the air conditioning. So application of air conditioning are there in industrial as well as comfort. In industrial, different industries are there in which we have to maintain the temperature as well as humidity, because air conditioning is maintaining the temperature as well as humidity.
humidity as well as temperature being controlled. So there are different industries where temperature as well as humidity are being controlled, like textile, printing. Humidity is definitely being controlled for the printing processes in the different stages of the paper printing. So humidity is also to be controlled. So in different manufacturing, photographic, definitely computer rooms, we need the power plants and vehicular. So these are the industries in which we need the air conditioning in this temperature as well as humidity, somewhere air velocity and air circulation also being controlled. In comfort, commercial, either it is commercial or it is residential, the humidity, temperature, air purity, and air velocity is being controlled. So these are the common application of air conditioning, and these three are the mainly common application of refrigeration. ये आपको पहले भी मैंने रिव्यू किया था थर्मोडायनेमिक्स का. बेसिकली द रेफ्रिजरेटर, basic concept of refrigerator is on the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics, that is the Clausius state of second law. This is the basic of refrigeration. I'm just revising that Clausius statement says that it is impossible to transfer heat in a cyclic process from low temperature to high temperature without any work from external source. And if we cannot transfer the heat from the low temperature body to the high temperature body without any work input. But if the work is input, then it can be done. So it is done by using this work is getting in either compressor, the form of compressor work. So that's why the heat is extracted from the space which is being cooled, and it is transferred to the surrounding environment, that is at a high temperature. And COP is the ratio of desired output upon required input. Desired output is our temperature, our heat which is extracted from the body or the space which is cooled to the work input. And this W by the energy balance, this is QH minus QL. This W is the QH minus QL. So COP will be QL upon QH minus QL. This is the COP. QL minus QL upon QH minus QL. This is the formula for the COP. So refrigeration cycle, heat flow in the direction of decreasing temperature, that is from high temperature to the low temperature. The transfer of heat from the low temperature to the high temperature requires a refrigerator or the heat pump. Refrigerator or the heat pump, their objective are different. In the refrigerator, we need the low temperature. In the heat pump, we need the high temperature. मैं थोड़ा सा इसे जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि पहले भी इसे पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली रिवाइज कर रहा हूँ. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स में, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में, और इंजीनियर्स में भी आपने इसका बेसिक थोड़ा पढ़ा होगा. इसलिए ज़्यादा इसमें टफ चीज़ें नहीं है. ये थर्मोडायनेमिक्स का रिव्यू है थोड़ा सा, इसलिए पहले भी दिया था कि क्योंकि दिस इज नेसेसरी टू नो the phase diagram, because we have to play around the phase diagram and the pH chart. Generally we use the pH chart for calculating the properties at different level, at different states. That's why the pH chart should be known to us. So this is the pH chart. We know that this is the liquid region. Definitely we are working between liquid and vapor. Just we are not dealing with the solid region or solid liquid region. Sometimes we can need, otherwise liquid and liquid plus gas is the basic region which are in the cycle, refrigeration cycle. This is saturated liquid line, this is saturated vapor line, and at this point saturated liquid, the refrigerant or any fluid will be in the saturated liquid, in completely liquid. After this, this is liquid. This is called as subcooled liquid. This is called as subcooled liquid at this point, and at this point this will be saturated liquid, and in this region this will be a mixture of liquid and vapor.
and at this point this will be completely vapor. So this is called as saturated, dry saturated vapor. ये ड्राई सॉलिड लिक्विड यहाँ पर ड्राई सैचुरेटेड वेपर और इसके बीच में देयर विल बी मिक्सचर, ठीक है। एंड ये पीएच डायग्राम है। सो दिस हीट, यहाँ पर HF बोलते हैं इसे, HF, और यहाँ पर HG बोलते हैं हम इसे। सो दिस HF माइनस HG, दिस इज written as HFG. HG means HF. So this is called as latent heat of vaporization, HFG. Latent heat of vaporization. After that, it is superheated vapor. Superheated vapor. And this is critical point. Critical point के ऊपर क्या होगा कि directly liquid will be directly converted into the gas without any latent heat. There is no latent heat. There is no any mixture. Liquid will be just heating and liquid will be just converted into the, whenever the liquid is heated, it will be directly converted into the vapor above the critical point. And below the critical point, there will be the mixture also, and this will be increased whenever the pressure is being increased. So this latent heat is being decreased. Latent heat घटती जा रही है ना। तो अब आप समझ सकते हैं हमारे रेफ्रिजरेंट के लिए हमें ज़्यादा लेटेंट हीट चाहिए कि कम लेटेंट हीट चाहिए। रेफ्रिजरेंट हमारा एब्जॉर्ब करेगा, अभी हम देखेंगे रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है हीट सराउंडिंग से। सो लेटेंट हीट वेपराइजेशन शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो ये इसलिए इट शुड बी अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। तो अभी देखेंगे हम डायग्राम जहाँ देखेंगे। तो बहरहाल इतना हम समझ लीजिए कि प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ लेटेंट हीट हमारी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो लेटेंट हीट हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे लेटेंट हीट हमारी बढ़ रही है। ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है हमारी। इस ट्रिपल पॉइंट लाइन पर तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, तीनों फेज। ट्रिपल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है, इस पर तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ठीक है। ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो ये सीधा होगा कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये कांस्टेंट प्रेशर है। ये टेम्परेचर लाइंस हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं। और यहाँ पर ये होती है पीएच चार्ट पर, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस होती है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस है आपको, ये जो दिखाया हुआ है, ये डॉटेड लाइन है, दीज आर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर इसका एक पर्टिकुलर सैचुरेशन पॉइंट होगा जिस पर ये चेंज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। सो सब कोल्ड लिक्विड पे आप जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसमें इसका टेम्परेचर, ये आपका प्रेशर ये बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। सब कोल्ड लिक्विड में टेम्परेचर आपका ये इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर ये, और इसके बाद ये टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है प्रेशर, लेकिन आपका इधर डिक्रीज हो रहा है सैचुरेटेड वेपर में। और ये आपका टीएस डायग्राम होता है। थोड़ा सा मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो चीज़ भूल चुके हों शायद छुट्टियों में, तो वो चीज़ थोड़ी सी रिवाइज हो जाए, ताकि जब हम सॉल्व करें प्रॉब्लम तो हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। जैसे आपका ये यहाँ पर सॉलिड है, फिर ये आपका यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करें, आप वाटर, फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि ये आपका क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ये लाइन आपकी 1 एटमॉस्फेयर पर है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, 1 एटमॉस्फेयर पर है, तो उससे आपको समझना आसान हो जाता है। तो for example water at atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure. So for example this is the minus 20 degree centigrade. So minus 20, first of all water will, when the water heated, so when it is heated, so it will the temperature will increase minus 20 to this will be 0 degree, about 0, करीब 0 होता है जिस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर पर वाटर फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो वाटर अब यहाँ पर फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर विल गेटिंग मेल्टेड, सो इट विल द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड आइस इन दिस रीजन, एंड दिस विल द मिक्सचर, एंड हियर दिस इज कंप्लीटली आइस, हियर दिस इज कंप्लीटली वाटर। So this is at 0 degree centigrade, right? 0 degree centigrade.
उसके बाद फिर आप दोबारा हीट करेंगे तो जब ये 100 पे पहुंच जाएगा, ये करीब 100 होगा। तो ये आपको करीब इसलिए लग रहा है क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक लाइन है नहीं, 1 एटमॉस्फेरिक ऊपर की लाइन है इसलिए कम आपको दिख रहा है। 1 एटमॉस्फेरिक लाइन थोड़ा नीचे होगी शायद। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप एटमॉस्फेयर की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंच जाएगा ये, तो अब ये आपका फेज चेंज होना दोबारा शुरू हो जाएगा। 0 से 100 तक ये लिक्विड रहेगा, 0 पर कम्प्लीटली लिक्विड हुआ है यहाँ पर ये। अब ये लिक्विड 0 से 100 जब 100 हो जाएगा तो फिर ये दोबारा फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कम्प्लीट लिक्विड है, कम्प्लीट वाटर है, ड्राई सैचुरेटेड वाटर, और यहाँ पर क्या है, मिक्सचर है, वाटर प्लस स्टीम। ठीक है, मिक्सचर है, वाटर प्लस स्टीम मिक्सचर। और इसके बाद कंप्लीट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा 100 पर ही। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा फेज चेंज के। ड्यूरिंग द फेज चेंज देयर विल बी टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर बोथ कांस्टेंट। टेम्परेचर भी कांस्टेंट आप देख रहे हो, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन तो है ही है। ऐसे यहाँ पर भी ड्यूरिंग द यानी फेज चेंज देयर विल बी नो टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज। प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर ये कंप्लीट लिक्विड हुआ, कंप्लीट वेपर हुआ। उसके बाद फिर आप दोबारा हीट करेंगे और हीट करते जा रहे हैं आप कंटिन्यूसली, तो अब ये इंक्रीज करता रहेगा। ये कहलाती है आपकी सुपर हीटेड वेपर, दिस इज सुपर हीटेड वेपर। और ये आपकी सुपर हीट कहलाती है, दिस इज दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ सुपर हीट। यानी अगर हम बात करें 1, ये 1 है आपका स्टेट, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है फॉर एग्जाम्पल, ये 5 है और ये 6 है। तो ये T6 माइनस T5 दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ सुपर हीट। इसी तरह से T2 माइनस T1 दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सबकूल। T2 माइनस T1 इज द डिग्री ऑफ सबकूल एंड T6 माइनस T5 इज द डिग्री ऑफ सुपर हीट। ठीक है, तो इसमें आपका Cp ऑफ स्टीम आपको चाहिए। इसमें आपको प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है, आपको 6 पॉइंट पर आपको फॉर एग्जांपल H कैलकुलेट करना है। तो H कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल लगाएंगे Cp dt, H6 माइनस H5 क्या हुआ, DH क्या होता है आपका Cp dt, है ना, पर यूनिट मास ले रहे हैं Cp dt, तो Cp T6 माइनस T5। इस तरह से आपका T6 आपको पता है, और T5 क्या होगा, T5 विल बी द सैचुरेशन टेम्परेचर एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर। जो 1 एटमॉस्फेयर है तो इस पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ सैचुरेशन टेम्परेचर, लेकिन अगर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, 0.1 एटमॉस्फेयर है, तो यू कैन सी फ्रॉम द टेबल, रेफ्रिजरेशन टेबल, you can see the temperature, saturation temperature at this particular pressure, right? So this will give you the saturation temperature T5. So T6 you have been given in the problem. So T6 minus T5 multiply the Cp of vapor, Cp of vapor. This will give you S6. This is the method of calculating S6. और H5 क्या होगा, H5 will be Hg। H5 क्या होगा, Hg। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको शायद याद होगा कुछ को, कुछ थोड़ा सा अगर भूल गया हो तो H5 तो H6 के Hg के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर। H4 क्या होगा, H4 बताइए भाई, H4 क्या होगा, किसके बराबर होगा, HF होगा सर, HF के बराबर होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है तो वो आप फिर जैसे आपको इसके बीच में कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट, सब कोल्ड लिक्विड रीजन में, सब कोल्ड रीजन कहता है, सॉरी ये नहीं डिग्री ऑफ, मैं गलत बोला, H2 माइनस डिग्री ऑफ कोई नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई टेम्परेचर अगर है या H3 की बात करें तो H4 माइनस ये डिग्री ऑफ सब कूल होगा, यहाँ पर ये डिग्री ऑफ सब कूल है, सॉरी ये डिग्री ऑफ सब कूल। यहाँ पर कोई टेम्परेचर पर अगर आप प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे सब कूल करते हैं हम लोग इसमें रेफ्रिजरेशन में, तो यहाँ पे इसके बीच में कोई कैलकुलेट करना चाहें तो फिर आप Cp ऑफ वाटर यहाँ पे आपको चाहिए होगा, CO का 4.18 जनरली ले लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें 4' अगर हम इसे कहते हैं, ये टेम्परेचर यहाँ पर 4' है, तो H4' अगर हमें कैलकुलेट करना है तो H4 माइनस H4' विल बी इक्वल टू Cp dt। तो ये Cp जो वाटर का होगा 4.18 Cp T4 माइनस T4'। इस तरह से हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं सब कोल्ड रीजन में। ये कैलकुलेशन मेथड होते हैं सब कोल्ड रीजन में, अगर हमें प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है या, और दूसरा मेथड ये भी होता है सब कोल्ड रीजन में, सुपर हीट में नहीं कर सकते। सब कोल्ड का ये स्लोप जो होता है कम होता है, तो H4' और ये H4' को HF के बराबर भी मान सकते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर।
इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया होगा ना H4 डैश का, तो H4 डैश को आप HF के बराबर भी मान लेते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, HF के बराबर मान सकते हैं at T4 डैश, T4 डैश टेम्परेचर पर। इस पे भी ये भी एक मेथड है, इससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये स्लोप कम होता है, करीब लाइन के पास ही होता है, ये सैचुरेशन लाइन के करीब करीब बराबर ही होता है। उस प्रेशर पर नहीं देखेंगे लेकिन टेम्परेचर पर देखेंगे, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर को भी रिड्यूस हो जाएगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इसलिए जो है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम देखें कोई भी, फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री है तो 50 पर जो HF होगा वो H4 डैश करीब बराबर होगा, ये भी एक तरीका, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट पर कैसे H कैलकुलेट करेंगे ये हमने आपको बताया। अच्छा, अगर S कैलकुलेट करना पड़े आपको S, तो S6 अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो S कैसे कैलकुलेट करते हैं? S6 S5, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू Cp ऑफ वेपर, वेपर है स्टीम या वेपर या जो रेफरेंट वेपर है जो भी है, ये होगा लॉग T6 अपॉन T5, ठीक है। दिस इज द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग S6 कैलकुलेट करना है। या होता क्या है कि जैसे कि पहले भी आपको बताया कि आपको ये वाला अगर ये ऐसे होता क्या, जनरली यहाँ से ये ऐसे इंक्रीज हो रहा होता है, ये हमारा जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, तो इसकी एस हम कैलकुलेट देख सकते हैं डायरेक्ट, ये हमें मालूम होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 7 है तो 7 पर हमें मालूम होता है कि 7 पर क्या एस जी के बराबर है, और ये जनरली क्या होता है, आइसेंटोपिक प्रोसेस होता है, तो आइसेंटोपिक प्रोसेस से हम S6 में मालूम होता है, तो S6 हमें मालूम होता है SF SG के बराबर है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द T6 हमें गिवन नहीं होता तो T6 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। T6 मालूम हो जाएगा तो फिर इस इक्वेशन से हम H6 कैलकुलेट कर सकते हैं, सुपर हीट टेम्परेचर और सुपर हीट एंथैल्पी हम इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया? ये चीज हमने आपको यही बता दी, आगे भी हम इसे एक जगह हमने लिखा हुआ है लेकिन हमने यही, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यही सारी चीजें आ जाएं, क्योंकि पहले से एक बेसिक क्लियर हो जाए, जो पहले भी बताया था आपने की भी है कैलकुलेशंस, लेकिन बहुत सी चीजें भूल जाता है आदमी, इसलिए रिवाइज कर दिया। अभी इसमें कोई चीज कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ ले। So how we will know at what temperature we have to find out the SG? At what temperature we have to find the SG. S6. So for S6, yes sir. For S6, you said that we have to find out the SG from the graph. So how will we know the temperature at which we have to find for calculating the temperature, generally what is given, generally this state is saturated. Generally it is given from the before the compression, it is saturated state. This state is generally given in the problem, 7 state. Okay. So and at 7 state, this is equal to S7 equals to SG. S7 is equals to SG, ये लिखा तो है, S7 is equal to SG at this particular pressure is given, ठीक है, and that S7 is equal to S6, right? S7, S6. Isentropic process is generally, it is isentropic process, compression is isentropic. So that you can calculate, you can know the S6 and SF, S5 is equal to SG at this particular pressure. So from this equation, you can calculate the T6. Okay, sir. Method to the T6. Okay, beta. Okay, thank you, sir. And then you can use this T6 here in this equation, then to calculate the H6. So generally, in the problem, we need to know what are the H enthalpy at different states. Generally, before compression, it is saturated, and after compression, it is superheated. After condensation, it is generally subcooled. So you calculate by using this method, or generally it is not subcooled, it is saturated. And तो ये इस तरह से होता है, तो और ये 2-3 बस ये आपको कैलकुलेट करना होता है, ये तो बराबर ही होता है, H4 आपका जो भी स्टेट आएगी उसके बराबर होता है।
तो आपको मेनली ये S7, S6, H4 ये कैलकुलेट करना होता है, अभी आप देखेंगे। तो दिस इज Sir, what रिवर्स will happen कार्नोट। above the critical point? जी, Sir, what will happen above the critical point? व्हाट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट? नहीं सर, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्या होगा सर, अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर कोई स्टेट आती है लिक्विड हाँ, की तो? क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल पॉइंट ऊपर क्या होता है कि अब इसके ऊपर अगर आप हीट कर रहे हैं ना आप टेम्परेचर, ये प्रेशर अगर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है, इफ द प्रेशर, जैसे ये प्रेशर यहाँ से बढ़ रहा है, ये प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक था फॉर एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर पे क्या होता है 220 बार होता है, ठीक है। तो इफ योर वाटर इज एट 100 बार, at 100 bar it is at a liquid state, then you heat it and it will be, after heating it will be first convert to the mixture, and then after mixture it will be in the vapor region. But if your water is compressed, you compress the water at after the 220 bar, after 220 bar, for example 300 bar, if you compress the water to the 300 bar temperature, then when you heat that water, so that water will be directly converted into vapor without getting any latent region, without getting any mixture. There will be no mixture. Just you heat and just it will be at 300 bar, it will be directly converted into the vapor, right? At the 300 bar. ओके सर, ओके ठीक है, तो हीट करते ही ये सर। आप सीधा ये जो है आपका उसमें चला जाएगा। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना ऊपर होगा इतनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, फिर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ हाँ, ये लेटेंट रीजन, आपका लेटेंट रीजन मिक्सचर वाला जो पार्ट है रिड्यूस होता जा रहा है, देख रहे हैं ना ये। और क्रिटिकल यस पॉइंट पर तो कोई नहीं है, ओके सर, आई क्रिटिकल गॉट पॉइंट पर डायरेक्टली हो रहा है, क्रिटिकल के ऊपर और नहीं। तो जनरली आपने जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं हमारे, वो इस रीजन में काम करते हैं। सुपर क्रिटिकल वाले जो है हमारे जो होते हैं इसी रीजन में हमारे काम करते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होते हैं वो, उस पर लेटेंट रीजन नहीं होता, ठीक है। तो उसमें कम हीट हमें देनी पड़ती है, लेटेंट हीट हमारी जो है वेस्ट, हीट हमारी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। यस सर। लेकिन सुपर क्रिटिकल के लिए आप समझ रहे हैं ना कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर का मतलब क्या हुआ कि अगर आप बॉयलर में चले गए तो थोड़ा सा मैं एक लाइन बता दूं कि जाहिर सी बात है इतने हाई प्रेशर पर डिवाइस को आपको यानी मेंटेन करना है, तो यू शुड हैव द यानी थिक वॉल्स, एंड आल्सो द मटेरियल शुड बी वेरी वेरी यानी वेरी वेरी गुड कंडक्टिंग मटेरियल एंड हैविंग गुड स्ट्रेंथ आल्सो, because there will be very very high pressure, 300 bar is very high pressure. So boiler will be heavy, there will be heavy construction with the boilers as well as turbines also. ये प्रॉब्लम है बस इसमें, लेकिन होते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स हो, तो बहरहाल ये क्रिटिकल की बात है। और कुछ बेटा? चलिए, नो सर कंप्लीट। okay, so this is the reverse Carnot cycle, which is the basic cycle of the refrigeration, already discussed with you in last year. The basic cycle, this is not the working cycle, but this is the standard cycle, and you can say this is an ideal cycle, right? There is a compressor, there is a condenser, there is a turbine and evaporator. These are four component: compressor, condenser, turbine and evaporator. So basically ideal cycle, what the purpose of ideal cycle is that ideal cycle provide us a level, a highest level that up to which we can achieve our performance, our COP. This is, and this provide the basis that how we should work in this direction. This is the basis. This is not working cycle, but this provide us the basis for developing the working cycle. We have to modify this cycle to make our cycle practical, right? That's why we study this reverse Carnot cycle. The processes will be same in the actual cycle also, but we have to make them possible. So first process, you can say the compression process, in which the liquid is here. It is a mixture. It is getting compressed in a compressor, compressed to a saturation point, and after that heat is rejected in the condenser to the warm environment, and phase change will be there from the vapor to the liquid, saturated liquid. Then it is expanding the turbine, so temperature will definitely will reduce. This is TL, this temperature is TL,
temperature reduce, so that low temperature liquid will extract the heat from the surrounding, that is a cold medium, and phase change will take place from the liquid to the vapor, from the low liquid to the here the liquid is more, vapor is less. Here mixture also, but here liquid is less and the vapor is more, right? So in the evaporator, this is a component evaporator in which the evaporation, or you can say the heat extraction, will be taking place, and liquid is getting converted into the vapor, but not complete vapor. So this is the highest cycle. Here all the processes are all four processes are reversible process, right? Reversible process को रिवाइज करें तो reversible process are those process which can be reversed, and so that the system and surrounding will achieve their initial states. That is the reversible cycle, and the reversible cycle will provide us the most efficient cycle, because in the whenever reversible processes are in the work absorbing device, so they will absorb lowest work, and whenever they are in the work producing device, then they produce the highest work. So these are the reversible process. So 1 to 2 is the reversible isothermal process, and 2 to 3 is the reversible adiabatic process, 3 to 4 is the reversible isothermal, and 4 to 1 is the reversible adiabatic. So two processes are adiabatic, constant temperature, and two processes are adiabatic. These two processes, adiabatic process, these two processes are isothermal process. So this is the Carnot refrigerator having highest theoretical COP. For the case of Carnot cycle, we know that Q by T is constant for the reversible process. Q by T is constant, or you can say that Q is proportional to temperature for the reversible processes. This is the Carnot theorem, Carnot's law. So QH by QL will be equals to TH by TL. QH by QL will be equals to TH by TL. So that's why COP for the Carnot refrigerator will be TL upon TH minus TL, or COP for Carnot heat pump will be TH upon TL minus TL. TH minus TL. ठीक है, तो ये अभी है टाइम हमारे पास, चलिए. तो now what are the basic difficulties? ये पहले भी मैंने बताया था, लेकिन थोड़ा और दोबारा बता देते हैं. What are the basic difficulties? First difficulty is that compression. This is the wet compression, in which the liquid and vapor is being compressed to a state that is saturated liquid. So the compression is wet compression. This is called as wet compression. It's wet compression, right? This is wet compression. 1 to 2 is the wet compression, right? And so what modification is done in the actual cycle, that this wet compression is converted to dry compression. Wet compression is replaced by the dry compression. Because in the wet compression, there is, in reciprocating compressor, there is problems, different problems are there, because in the wet compression, there will be a difficulty in the reciprocating motion. This will lubrication, there will be problem in the lubrication, and also there will be a problem of the rusting in the piston. So that's why wet compression. तो ये यहाँ से कंप्रेस करने के बजाय हम इसे कंप्लीट, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप यहाँ पर रोक दें यहाँ से. तो जनरली क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है रेफरेंट, तो कंप्लीट यानी कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट होगा. ऐसा नहीं होगा बीच में रुक जाए, ये पॉसिबल भी नहीं प्रोसेस. इसको अगर पॉसिबल करते भी है तो फिर डिफिकल्टी है, खासतौर से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ तो डिफिकल्टी है ही. हाँ, रोटरी कंप्रेसर इसलिए यूज करते हैं कहीं नहीं, क्योंकि इसमें फायदा क्या है हमारा, कि वर्क डन इसमें कम है ना, वर्क डन इसमें कम है. और उसके बाद ये कंडेंसर में जाता है, ये
कंप्रेशन के बाद ना कंडेंसर में जा रहा है, तो कंडेंसर में ये हीट हमारी बढ़ रही है, ये जो सुपर हीट हॉर्न कहलाती है, दिस हीट सुपर हीट हॉर्न, दिस हीट इज कॉल्ड एज सुपर हीट हॉर्न। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, सुपर हीट हॉर्न का। सो दिस सुपर हीट इज इंक्रीज। सो व्हेनेवर कंडेंसर में आपको कूलिंग वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है कंडेंसिंग के लिए, कूलिंग के लिए। तो अगर आपका कंडेंसर आप इसे ड्राई कूलिंग पे ड्राई कंप्रेशन कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर जाएगा ऊपर, दिस विल बी सुपर हीटेड। तो पहले ये सुपर हीट से सैचुरेशन में आएगा, यहाँ पर आएगा कंप्लीट वेपर में आएगा, उसके बाद यानी प्रेफर हम करते हैं कि वेट कंप्रेशन रहे। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ प्रॉब्लम है। तो लार्ज हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, लार्ज हमारे जो सिस्टम्स होते हैं उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं। रोटरी हम लार्ज कंप्रेसर रोटरी नहीं यूज करते, लार्ज कंप्रेसर्स में रेसिप्रोकेटिंग यूज करते हैं लार्ज प्रेशर रेशियोज के लिए, जनरली लार्ज डिवाइसेस के लिए, लार्ज सिस्टम्स के लिए। रोटरी कंप्रेसर के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। फ्लो रेट कम होता है तो रोटरी कंप्रेसर्स का, तो और अमोनिया के साथ जनरली जो अमोनिया के साथ ज़्यादा बेस्ट मुकाबले में फ्रीऑन्स के। तो इसलिए जो है अमोनिया के साथ रोटरी कंप्रेसर यूज कर लेते हैं, रोटरी कंप्रेशन बेटर रहता है, इसलिए उसमें वेट कंप्रेशन कर लेते हैं। रोटरी ज़्यादा रोटरी कंप्रेशन तो हमारा वेट कंप्रेशन चाहिए, हम इसे ड्राई कंप्रेशन ही होगा, यानी ये आपका जो एवापोरेटर में आपका रेफरेंट ही अब्सॉर्ब करेगा, तो इट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द वेपर, देन इज passed through and then it is taken to the compressor. So before compression it is completely converted into the vapor, then it goes to the reciprocating compressor and compression will take place. So here compression work is increased and this superheat horn is increased, but here it is better in terms of reciprocating compressor. Problem in the reciprocating compressor. तो एक तो मॉडिफिकेशन जनरल रेफ्रिजरेशन में ये करते हैं कि ड्राई कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन को हम ड्राई कंप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वेट, ये टीवी डायग्राम पर दिखाया हुआ है, ये वेट कंप्रेशन था आपका और ये आपका ड्राई कंप्रेशन है, ये ड्राई कंप्रेशन है आपका टीवी डायग्राम, ये ड्राई कंप्रेशन है, ये आपका वेट कंप्रेशन। अच्छा, तो पहला तो हुआ वेट कंप्रेशन और ड्राई कंप्रेशन। अच्छा, दूसरा है आपका आइसेंट्रोपिक और आइसेंथाल्पिक प्रोसेस। तो अभी तक जो आपका प्रोसेस है इसमें, ये प्रोसेस जो होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस जो है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और इसमें टरबाइन यूज करनी पड़ी है, टरबाइन, क्योंकि यहाँ पर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो टरबाइन यूज करते हैं, लेकिन टरबाइन की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, टरबाइन कंपोनेंट बहुत हैवी कंपोनेंट होता है, टरबाइन टेक्स अ लॉट ऑफ, टरबाइन बहुत ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें टरबाइन से हमें वर्क तो मिल रहा है डेफिनेटली, लेकिन अब यहाँ पर देखें इसका वॉल्यूम जो होता है जिस प्रेशर पर यहाँ पर है, इसका ये जो PdV है ये बहुत कम है, जो वर्क प्रोड्यूस कर रही है ये जो आइसेंट्रोपिक वर्क, ये है आइसेंट्रोपिक वर्क जो प्रोड्यूस कर रही है, दिस इज नॉट वेरी लार्ज, ये वर्क बहुत कम होता है, क्योंकि वर्क जो फ्लो वर्क है ये VdP होता है, और यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड है, V क्या है, लिक्विड का होगा V, और V लिक्विड का जो होता है बहुत कम होता है लिक्विड का, यानी VF होगा, VF इज वेरी लेस बिकॉज डेंसिटी इज वेरी हाई, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो VF कम होता है, तो VF इज वेरी लेस। सो ये वर्क जो होता है ये बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमें यहाँ टरबाइन में एडवांटेज ये मिल रहा होता है कि वर्क हमारा हमें प्रोड्यूस हो रहा है, उस वर्क से हम कंप्रेसर रन कर दें, लेकिन हमारा ये वर्क जो प्रोड्यूस हो रहा होता है ये बहुत कम है, और टरबाइन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, टरबाइन हैवी कंपोनेंट होता है, हैवी कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसलिए टरबाइन की एक्सपेंशन के बजाय टरबाइन में हम एक सिंपल थ्रॉटलिंग डिवाइस लगाते हैं, सिंपल थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज़ करते हैं एक्सपेंशन के लिए बजाय टरबाइन यूज़ करने के एक सिंपल थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज़ कर लेते हैं, सिंपल थ्रॉटलिंग डिवाइस, या फिर जो है कैपिलरी डिवाइस यूज़ कर लेते हैं, कैपिलरी डिवाइस आपने देखी होगी, इस तरह से कैपिलरी डिवाइस होती है,
बहुत छोटी सी कैपिलरी डिवाइस है, तो कैपिलरी डिवाइस यूज कर लेते हैं या थ्रॉटलिंग डिवाइस यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो वो बहुत यानी वेट बहुत कम होगा उसका, बहुत कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी, वर्क लेकिन हमारा थोड़ा सा हमें जो वर्क मिल रहा था वो वर्क हमारा एडवांटेज हमारा वर्क का हमारा कम हो जाएगा, लेकिन वो वर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हम बताया VDP वर्क होता है, लो वर्क है यहाँ पर, तो VDP के बराबर होगा, और V बहुत कम होता है, तो इसलिए वर्क जो है बहुत कम होता है। इसलिए आइसेंटोपिक प्रोसेस को, ये आइसेंटोपिक प्रोसेस था हमारा, ये हमारा आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है। आइसेंटोपिक प्रोसेस को आइसेंथाल्पिक प्रोसेस में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इससे हमें दो डिसएडवांटेज होते हैं हमारे इसमें। एक तो ये है कि हमारा ये वर्क हमें नहीं मिलेगा जो टरबाइन में मिलता। दूसरा ये हमारा अब ये 4 डैश की जगह हमारा 4 पर आ गया, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस 4 पर हुआ, तो इसलिए जो हमारा ये जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है ये हीट, तो ये होती है आपकी H यानी 5, अगर हम इसे कहें H5 में या H1 बोले इसे H1, ये H1 माइनस H4 होती हीट। अब ये H1 माइनस H4 होगी, अब मतलब H1 माइनस H4 होगी, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का, ये हमारा रिड्यूस हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा वर्क हमारा हमें नहीं मिलता है, लेकिन हमारा एडवांटेज बहुत ज़्यादा है इसमें एक्सपेंशन डिवाइस यूज़ करने में। ये लाइट वेट होगा और हमें यानी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगा और थोड़ा कॉस्ट भी हमारा रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए सिंपल इट इज़ द टरबाइन इज रिप्लेस बाय सिंपल थ्रॉटलिंग डिवाइस। टरबाइन की जगह सिंपल थ्रॉट, बाकी सब वही रहता है, कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस। टरबाइन का जो एक्सपेंशन डिवाइस आ गई, तो ये प्रोसेस हमारा। तो अब और दूसरी बात ये, अब हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस था हमारा, क्योंकि ये हमने यहाँ पर ड्राई की जगह वेट की जगह ड्राई कंप्रेशन करा, तो ये प्रोसेस हमारा आइसोबारिक हो गया कंडेंसर में। तो 3 चेंज हो गए हमारे, वेट का ड्राई कंप्रेशन की जगह वेट कंप्रेशन की जगह ड्राई कंप्रेशन हो गया, ये हो गया ड्राई कंप्रेशन हो गया, ये वेट कंप्रेशन की जगह एक चेंज। दूसरा चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस था कंडेंसर में, अभी आइसोथर्मल नहीं रहा क्योंकि ये सुपरहीट में आ गया। सुपरहीट में आने की वजह से तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, पहले सुपरहीट से ये आपका सैचुरेशन रीजन में आएगा, उसके बाद कंडेंसेशन होगा, तो ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल नहीं रहेगा, ये कंडेंसेशन प्रोसेस ये आपका आइसोबारिक हो जाएगा। दूसरा चेंज ये हुआ। तीसरा चेंज ये हुआ, ये जो आपका प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, अभी आपका आइसेंथाल्पिक प्रोसेस हो गया। तीसरा चेंज ये हुआ, टरबाइन की जगह आपका एक्सपेंशन वाल्व। ये 3 चेंज कर लेते हैं हम इसे टू मेक इट प्रैक्टिकल, इस साइकिल को प्रैक्टिकल बनाने के लिए। ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं पर रखते हैं। तो अब हमारा ये PV डायग्राम हुआ, ये आपका 1 to 2 is the isentropic process, 2 to 3 is isobaric process, 3 to 4 is expansion process in the simple throttling, so pressure reducing and but the enthalpy is constant, volume is increasing, pressure is reducing. And this 4 to 1, this is the refrigeration effect, refrigeration process, in which heat is extracted, QL, and this is the heat rejected in the condenser, QH. बताइए बेटा, कोई चीज कुछ डिस्कस करनी है तो बहरहाल वैसे मैंने बता दिया, फिर दोबारा हम इसे डिस्कशन वाले यानी लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे इसे, दोबारा प्रॉब्लम्स आपसे पूछ लेंगे इसमें, लेकिन ये सब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी कुछ पूछना है किसी को तो टाइम तो हो गया। सर CUP में क्या चेंज TS होगा? डायग्राम में सर 2 से 2 डैश कौन सा प्रोसेस हो रहा है सर? ये 2 से 2 डेज डी सुपर हीटिंग कहते हैं इसे, डी सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग से सैचुरेशन, जैसे पहले फॉर एग्जांपल अगर वाटर, मैं समझाने के लिए कह देता हूँ वाटर को थोड़ा सा, तो जैसे यहाँ पर 300 में है वाटर, तो 300 से पहले 100 में आएगा ना, पहले वाटर 100 पे आके उसका फेस चेंज होगा कि 100 वाटर से वो 100 स्टीम से वो 100 वाटर पे आएगा, है ना। सर इसके लिए कूलिंग जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी वाटर है, हमारी स्टीम है यहाँ पर 300 पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फॉर एग्जांपल, वाटर से समझ में आसानी से आ जाता है ना। तो ये 300 है, तो पहले 300 से अब आप हीट एक्सट्रैक्ट करें, पहले 300 से या 200 से पहले 100 पर आएगा। 100 पे तो फेस चेंज होता है ना, तो हीट रिजेक्ट 100 पर, फिर ये स्टीम से 100 का वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। पहले सुपर हीट होती है, इसकी सुपर हीट होता है पहले, उसके बाद कंडेंसेशन होता है। जैसे बॉयलर में क्या होता था, पहले हीट होता था, फेस चेंज होता था, उसके बाद सुपर हीट होता। इसमें आप
कंडेंसर में इसका रिवर्स होता है, बॉयलर का डी सुपर हीट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है। यानी कंडेंसेशन क्या होता है? कन्वर्जन फ्रॉम स्टीम टू वाटर, और यू कैन से वेपर टू लिक्विड। ठीक है। और सर सीओपी में क्या डिफरेंस होगा? कार्नोट की सीओपी जाहिर सी बात है हाईएस्ट होगी, क्योंकि आपका वर्क डन भी एक तो इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू कार्नोट, वर्क डन भी वेट इंक्रीज हो गया। कंप्रेशन और ड्राई कंप्रेशन में जाहिर सी बात है वर्क डन आपका बढ़ गया तो सीओपी घट जाएगी। वेट कंप्रेशन में सीओपी ज्यादा होगी, ड्राई कंप्रेशन में सीओपी कम होगी। लेकिन वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना रेस्पिरेटरी कंप्रेसर के साथ। रेस्पिरेटरी कंप्रेसर का ड्राई कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन आप रन कर ही नहीं सकते हैं। वेट कंप्रेशन में आपका थोड़ा पिस्टन खराब हो जाएगा, और आपका लुब्रिकेशन ऑयल को भी बहुत समय कर देगा। टरबाइन खराब हो जाएगी ना? टरबाइन तो यहाँ पर है नहीं ना, कंप्रेसर है यहाँ पर। बॉयलर नहीं, कंप्रेसर है, कंप्रेसर खराब हो जाएगा। कंप्रेसर की वॉल को भी खराब करेगा, वो लुब्रिकेशन को भी खराब कर देगा। लुब्रिकेशन होता है ना रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। तो कंप्रेसर तो पढ़ा था ना मैं लास्ट ईयर में, कंप्रेसर पढ़ा था उसका पुराना, याद करिए। कंप्रेसर में लुब्रिकेशन वाटर जैकेट होता है उसमें, है ना? यस सर। कूलिंग के लिए वाटर जैकेट होता है, लुब्रिकेशन ऑयल होता है उसमें चारों तरफ जो रन फ्लो करता रहता है, तो वो लुब्रिकेशन ऑयल को भी खराब करेगा। और जो इसके अंदर यहाँ पर जो भी लिक्विड है, वो लिक्विड आपको उसकी जहाँ भी लिक्विड जाएगा उसको खराब कर देगा, कोरोजन क्रिएट करेगा, इरोजन क्रिएट करेगा। एक्सक्यूज मी सर, जी हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो गई है सर। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अटेंडेंस जल्दी जल्दी आप लोग लिख दीजिए, चाहे तो अटेंडेंस जल्दी जल्दी लिख के एग्जिट होते रहिए। बस अपनी नंबर लिख दीजिए, लास्ट 2 डिजिट लिख दीजिए, जल्दी से अपना नंबर लिख दीजिए। आइए। एक मिनट।